Now, good morning, class. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. हम लोग Good कल morning, पढ़े थे sir. क्वेश्चन नंबर थर्ड का प्रॉब्लम वन गिवन a equal to 5 b equal to 3 and nth term, that is the value of nth term, that is nth term is given 50, and find the value of n term and the Sn, that is sum of n term of arithmetic progression. तो इसमें जो हम लोग पढ़े थे इसको सॉल्व किए थे, उसके बाद हम आपको बोले थे सॉल्व करने के लिए। तो कोई प्रॉब्लम इसमें, अदर प्रॉब्लम नेक्स्ट कोई इसमें जो 10 प्रॉब्लम है उसमें से कोई और प्रॉब्लम जिससे नहीं सॉल्व हो रहा आप लोग से? सर सर हेलो सर 10 नंबर बता दीजिए। मैं नेक्स्ट कुछ इसका और सॉल्व कर देता हूँ। सुनाई नहीं दे रहा मुझे, कोई यदि बोल रहे हैं तो? ऋतुराज, यस सर 10 नंबर सर। ऋतुराज, ओम प्रकाश, जी सर। 7 number. 7 number. That is the given a equal to 8, am equal to 62, Sn 210, find n and d. नाउ आपको ए टर्म दिया हुआ है, एन टर्म दिया हुआ है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द एस एन एंड दैट इज द एस एन दिया हुआ है और एंथ और फाइनल डी टर्म निकालना है आपको। तो किस तरह से आप बनाएंगे इसको, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपने पूछा, ठीक है? तो मैं इसको बता देता हूँ 7 क्वेश्चन नंबर का। सर 8 नंबर भी बता दीजिए। कौन सा नंबर? 8 फोर्थ। 8 8 नंबर। अभी तो 7 कोई पूछा। हाँ सर हाँ सर, 8 भी उसके बाद बता बताइएगा। दीजिए। अच्छा, इसके बाद बता दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, इसके बाद मैं बता दूंगा ना। हम लोग यहाँ से कोशिश करते हैं कि किस तरह से निकालेंगे इसको, ठीक है? लेट हम लोग पहले इसका जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, here a is given 8, a is 8, now am's value is given 62 and Sn's value is given 260. Sn 210, sorry, 210, it is 210. And we have to find out the D and we have to find out uh, 7 question. N and D. We have to find out N and D. Find out N and D. So, how many terms are there in arithmetic progressions? Whose sum is 210 and whose nth term value is given 62. First term is 8 and the nth term, last term is 62 and sum of n term is given. So from there we can find out, so Sn formula will be Sn equal to, इसमें दो फॉर्मूला यूज करते हैं, एक जो था ये यूज कर रहे थे n/2, 2a प्लस n-1 d, और एक जो है कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दिया हो तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से भी हम लोग निकाल सकते हैं। एज n इक्वल टू दैट इज n/2 number of term we have to find out and a plus last term, value of last term is given, that is the 62, first term is 8, so we can find out from here Sn is given, so Sn is 210. Now putting
the value of that we will get as n 210 equal to, we have to find out n. Here a is 8 and n, that is l last term, that is 62. When you will add it, you will get n by 2, that will be 70. 210 now I am showing here, that is 210. So 35n, or we can write down 35n equal to 210. So by multiplying 70, 70, 100, 40, 6 आएगा 6 then 6 70, that is 150. So I think time. How many times? What will the 6. answer? 6. 6 N is equals 6 to sir 6. So n n equals equal to to 6. 6 N equal to 6. 6 We have got the value of n. Now putting in amp term, we can find out the value, that is last term is given here. So we can find out the a term and last term is given. So by the help of first term or a last term, any term, that is you can count. Total term is 6. So now a term equal to a plus n minus 1, and then b. Here n 62, a is 8, n is given 6, so it will be 5d. Now when we will subtract it, we will get, how much we will get? That is 2, 6, then 54. कितना आएगा? 54 by 5. 54. So B will be 54 by 5. ये आंसर आया, B का वैल्यू 54 by 5 फ्रैक्शन में आया। थोड़ा देखने में थोड़ा सा और तरीका लग रहा है, ये इसलिए फ्रैक्शन में आया, कोई दिक्कत नहीं। So in this way we have solved the problem number 7. Any problem? No, sir. Now, No, sir. all right. Now question number 8. 8 में हमको जो दिया हुआ है क्वेश्चन, उसको देखते हैं 8 में क्या दिया हुआ है। a equal to 4, a equal to 4, b equal to 2, sn equal to 14, then we have to find out the value. Now we have to find out the value. All right. So 4, a and 4, b equal to 2, sn equal to 14, and we have find to a and a, find a and a and a. No, minus 14 so question number 8. Rabbit is 8 na? Question number 8. Yes, sir. All right. So third 8. That is a equal to 4, b equal to 2. A equal to 4, a n, sorry, value of a n is 4. A n is 4, b equal to 2, b equal to 2, sn equal to minus 14, sn equal to minus 14. Then
we have to find out n and a. Find out n and a. So how we will find out? तो किस तरह से निकालेंगे? तो फॉर्मूला तो सेम हो गया जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले निकाले, जिस तरह से निकाले थे, दैट इज वैल्यू ऑफ Sn इक्वल टू n by 2, that is the a plus, we have not got a here, and तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें d दिया हुआ है तो वो फॉर्मूला लगा देते हैं जिससे कि हमको a निकल जाए, इसे हम लोग निकाल देंगे। n टर्म दिया हुआ है ना, तो उससे ये जो टर्म दिया हुआ है d दिया हुआ है, तो उससे हम लोग निकाल लेंगे, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं सिंपल इक्वेशंस बनाकर। ऑलराइट जी सर। सिंपल इक्वेशन बनेगा, पहले ये थोड़ा सा लंबा बनेगा, थोड़ा सा लंबा बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बनेगा ये, ठीक है। तो पहले इसको पुट ही कर दें, a plus l, last term is minus 14, last term is given 4, a is not given, Sn minus 14, n is not given, a is not given, plus l is minus 14, no, minus 4, it is 4 only, l is 4, and b is given 2. So here no d is used as in formula, d is not there. So we will find out how we will write down all the things. That is, after solving, you will get minus 28 equal to na plus 4n. All right. Now we will put the value of that is after finding out the an, that is we have to find out this one is equation 1. Second equation we can put from here, and term equal to a plus l minus 1 d, that is an is 4, a not given, n is not given, d equal to 2. Now 4 equal to a plus 2n minus 1. दो इक्वेशन आ रहा है क्या? 2n होगा और सर। that is -2 और -2 होगा। 4 equal to सर 4 माइनस minus 1. 4 minus 2n 1 equal माइनस to a 2 plus होता है 2n. सर क्या होगा? माइनस सर। 2 2n माइनस 2, हाँ बोलिए। 2n माइनस 2 होगा, n माइनस 1 इंटू 2, 2n ये माइनस वाला 2। उसके नहीं सर, ऊपर उसके 1 से ऊपर 2 होगा ना, सॉरी, तो होगा then 2 equal to a plus 2n, ये हुआ। अब हम इसको पुट तो कर सकते हैं, we can put the value of n here. Now from 2 we can put the value of n. सर 2n equal to हेलो सर 2n equal to 2 minus a, हेलो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है। हेलो सर इसको मान लेते हैं, ना पुटिंग 2 n का वैल्यू यहाँ मैं पुट कर दूंगा, तो देखता हूँ क्या निकलता है। सर हेलो हाँ, हेलो
एन का वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से भी बन सकता है एन इक्वल टू ए बाय 2, इसमें पुट कर देंगे एन का वैल्यू माइनस ना पुटिंग सर हाँ सर यहाँ -2 है तो इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, 6 होगा। आप 2 निकालिए। नहीं, ये तो माइनस ही होगा, ये ठीक है। ऊपर ऊपर देखिए सर, -2 है। सर 4 माइनस 2 यहाँ -2 था 4 माइनस तो 2 प्लस होगा। हो गया, प्लस फोर होगा। तो 6 हो गया, 6 हो गया ना, 6 माइनस ए 4a plus 2n minus 2, then 4 it will be 2a plus 2n, 6a plus 2n। ठीक है अभी, अब ठीक है, यस सर, यस सर। अभी ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है। हाँ, पुटिंग 2 in 1 और लंबा बन रहा, कोई बात नहीं, इसको हम लोग कर देंगे 6 माइनस ए बाय 2 प्लस 4 6 माइनस ए बाय 2, इस तरह से पुट किया। ठीक है, अब इसको इस क्वेश्चन को रब कर देते हैं। ठीक है, वो तो याद रहेगा, मान लीजिए याद नहीं रहेगा तो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। दैट इज वी हैव गॉट n इक्वल टू 6 माइनस ए बाय 2, ये हमने पुट किया था। सॉल्व करेंगे इसको, लेट -28 -28 इक्वल टू दैट इज 6a minus a square by 2 plus 24 minus 4a by 2 or it will be 56 equal to 6a minus a square plus 24 minus 4a, तो ये हो जाएगा it will be 2a minus a square plus 24 or minus 56, it will be minus 56, then we will take care, it will be minus 56 minus 24 minus 2a minus a square, it's not minus, it is plus 56 minus a square, तो कितना हो गया, 30 हो गया, 80, it will be 80 minus 80 equal to 2a equal to a square और a square it will come here minus 2a minus 80 equal to 0, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका फैक्टर निकालिए जो 2a के रूप में आ जाए, कितना आएगा, कोई सॉल्व किए हैं, इट इज स्लो प्रोसेस, कोई सॉल्व नहीं किए हैं, a का वैल्यू कितना आएगा, 80 का हम लोग करेंगे, इसका निकालिए 80 का, हेलो 80 का फैक्टर जो निकालेंगे हम लोग, सर। उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना होगा, 2 40
2, हेलो 20, 2 into 5. So it is 2, 2, 2, 7, 4, 8, 5. तो 8 और 10 है नहीं, और इस बार माइनस प्लस 8 minus 10 minus 50 equal to 0. Now we will solve it. Here it will be a square plus 8a minus 10a minus 15 sorry, equal to 0. Or we will get it by differentiation, that is in this way. A plus a minus 10 a minus plus a equal to 0, or a plus b or a minus 10 will get 0. So in this way we have got value of a equal to minus a, or a equal to minus or plus 3. So which one will satisfy that equation? So a 10 तो नहीं हो सकता क्योंकि nth टर्म जो है 4 दिया हुआ है, तो 10 तो होगा नहीं, तो माइनस ए फर्स्ट टर्म जो होगा, जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर ए इक्वल टू -8 हो सकता है क्योंकि nth जो टर्म दिया हुआ है वो कितना है 4 है। लास्ट टर्म ये समझिए, ये लास्ट वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म जो है वो 4 है, तो श्योर एंड सर्टेन ये जो होगा फर्स्ट टर्म होगा -8 होगा। समझ में आ रहा है? यस जी सर। यस ऑलराइट, सर। नाउ हम लोग इसको पुट कर देते हैं इसमें, इस फॉर्म में एन एन निकालने के लिए। एन निकालने के लिए नाउ एन इक्वल टू 6 minus a by 2, we'll put n equal to, that is a equal to -8, a minus a by 2, we get n equal to 14 by 2, और that is n will be 7. कितना आएगा n 7, that is we have got the value of n equal to 7. कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो n कितना आएगा? सर। 7. नाउ इस प्रकार से हम लोगों ने सॉल्व किया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 8। तो आप किसी तरह से भी निकाल सकते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन n का भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। दैट इज आप उसको a का वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो n के टर्म में आ जाता है, उसके बाद आप n निकाल लेते हैं, तो n निकल जाता है तो उसको पुट करके आप a निकाल लेते हैं। तो इंग्लिश आप सॉल्व कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ऋतुराज, नहीं ठीक है। कोई प्रॉब्लम? नहीं। नो सर। नो सर। नो सर। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी 9725 मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ 336। कितना टर्म एपी का लिया जाए कि वो 336 हो जाए? तो इसके लिए हमको वहां पर ही जो है फार्मूला है, तो उसको पुट करेंगे, सिंपल बन जाएगा।
Now, how many term of AP? How many term of AP? 9, 17, 25. Question number 4. How many term of AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of to give a sum of 636. 636. All right. So it is simple formula, that is we have to put the formula as n equal to n by 2, as we have to find out the number of the term equal to a is given 2a plus n minus 1 d. हमें d निकालना है, and that is d is given, a is given, we have to find out the n as Sn is given. So by putting all these things, that is 636 equal to n, we have to find out 2a, that is a is given 9 plus n minus 1, as we have to find out the n. D, that is d, we can find out d, as we can find out d equal to 17 minus 9. So it will be कितना होगा, 8 होगा, 8 होगा ना. Yes, now we sir. put the here 8. Now 36, 336 n by 2, 18 plus 8n minus 8, it will give 336 n by 2, 10 plus 8 n 336, 636 equal to, that is, you will get n 5 plus 4n. Then again it is quadratic equation. So it is again a quadratic equation. Or 336 equal to 5n plus 4n 5n plus 4n square. 4n स्क्वायर होगा सर, कितना होगा? 4n स्क्वायर. ठीक है, ठीक ही लगा. और 4n स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5n प्लस 5n माइनस 6. सही है जी? यस सर. सही होगा. यस सर. अब इसको आपको सॉल्व करना है. इसका वैल्यू निकालना है n का, तो n का तो वैल्यू निकालिएगा, तो वो कितना आएगा? थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है. सर हम निकाल लिए हैं. इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं ना? हेलो. तो b स्क्वायर माइनस 4ac करके निकाल लेते हैं. यस सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस यस माइनस सर, b बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac माइनस b. फार्मूला क्या है? प्लस 4ac. बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो फार्मूला इज माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना है फार्मूला? प्लस 4ac. यस सर.
तो इसको प्रूव कर देते हैं डायरेक्ट, वहां से क्वाड्रेटिक निकालने में लगता है। तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी इज 5, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4a and c is -36 and b को नंबर चला हो गया, ठीक है, बाय 2a a minus 5 plus minus under root 25 माइनस इसको गुना करने के बाद कितना आता है, तो लंबा चौड़ा हो गया, ठीक है कर लेते हैं। 66 और 16 है ना, 6 6 36 3 लेफ्ट 3 18 21 लेफ्ट 36 to 38 6 3 और 6 it will be 6 7 11 10 10,176 आता है, ये गुना करके नो सर नहीं आता है। तो ये प्लस हो जाएगा 10,176 बाय 8 दैट इज 4 इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि n निकालना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसको मिटा देता हूँ। सर बहुत बड़ा हो गया है लेंदी प्रोसेस हो गया सर। सर ठीक है, पॉलिनोमियल आपको जो होना है कुछ हो गया, वैल्यू ऑफ n वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n है, तो n इक्वल टू -5 प्लस माइनस इट विल बी कितना होगा, जोड़ देंगे उसको 26 है ना, 25 जोड़ दीजिए इसमें, दैट इज वी विल गेट 25 1 लेफ्ट 0 दैट इज 1 2 0 1 तो क्या लिखा सर? दैट इज 8। अब इसका क्या निकालिए, कैसे निकालिएगा, कितना आएगा, कितना आएगा इसका वैल्यू, इसको निकालने के लिए भी एक ट्रिक है, इसका सर रूट नहीं लिखाएगा सर, रूट अच्छी खत्म हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा, रूट डी का वैल्यू हो जाएगा 10, रूट खत्म ना हो जाएगा। एक मिनट निकाल ही देता हूँ मैं, 2001 रूट खत्म हो जाएगा सर। एक मिनट कितना होगा, इसको निकालने का तरीका है, तो इधर से होता है ना, गलत कर दिया मैं, 1 0 2 1 एक बार में हो गया, एक 101 आता है, कितना आया 101 बार 8 आएगा। अब इसको हटाइए, 5 तो 96, एक में 96 बार 8 आएगा, और एक में आएगा -106 बाय 8 आएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 12 96 ठीक है, यस सर। 12 और एक क्या आएगा, एक तो लगता है कि फ्रैक्शन में आ गया, वो तो कटेगा नहीं लग रहा मुझे, फ्रैक्शन में आ गया, 106 है सर। देते हैं, तो ये n इक्वल टू कितना आ गया 12, n इक्वल टू 106/8 है सर, तो कट नहीं जाएगा सर 106/8 को रहने देते, वो तो फ्रैक्शन में आएगा, वो फ्रैक्शन में आ गया सर। ये तो फ्रैक्शन में n नहीं होता है ना, नो सर, फ्रैक्शन में नहीं होगा, होल नंबर में m जो होता है नंबर ऑफ टर्म होता है, दैट कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, तो वो तो नेगलेक्ट हो गया, वो तो हट गया,
12 आ माइनस गया। 12 होगा ठीक है, आंसर, माइनस का 12 प्लस हो होगा। जाएगा सर। हाँ वो तो माइनस प्लस हो ही गया ना, तो माइनस प्लस यहाँ सब्ट्रैक्ट है तो प्लस 12 तो आ गया, जो करना सब कर दिए हम लोग। यस सर, यस 12 सर। तो आ गया। हाँ वो तो हो गया, तो इसको रहने देते हैं, ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन कैन दैट इज एंड टर्म कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। तो ठीक है, तो इस तरह से आपने सॉल्व किया, और आज भर मैं सोचता हूँ रहने देता हूँ, क्लास बहुत लंबा चौड़ा घिस गया। ठीक है, आंसर सर 60 टर्म आता है। हाँ बोलिए। आंसर 60 टर्म आता है। तो अभी और कुछ पूछना है क्या? अब कल पूछेंगे, कल हम लोग बनाएंगे, सॉल्व करेंगे नेक्स्ट कल यस सर। जो है। ठीक है सर, ठीक ठीक है। है, ऑल राइट, यस थैंक यू, सर, आज कर देता हूँ। अभी ओके सर, क्लास हो थैंक यू सर। जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू।